मेरी उंगलियां ही मेरे औजार हैं. My fingers are my tools. A documentary biography film on Ram V. Sutar. He is the recipient of Padma Bhushan in 2016 and Padma Shri in 1999 for his contribution in the field of arts. Ram Vanji Sutar is an Indian sculptor. He has created more than 50 monumental sculptures in last 40 years of his career. Ram Vanji Sutar was born on 19th February 1925 in the village of Kondur in Dhulia district of Maharashtra. In 1952, he got married to Pramila and like him, their only son Anil Sutar. His early mentor was Sri Ram Krishna Joshi, who later encouraged him to join the Sir J.J. School of Art in Bombay. By the end of his course there, in 1953, he topped the class and won the prestigious Maya Gold Medal for modeling. As a modeler for the Department of Archaeology, Southwestern Circle, Aurangabad, between 1954 and 1958, he was involved in restoring several ancient sculptures found in the caves of Ellora and Ajanta. In 1958 to 59, he was technical assistant in the exhibition division of Audiovisual Publicity, Ministry of Information and Broadcast, New Delhi, for preparing various types of model on the 5-year plan. He left his government job in 1959 with the intention to becoming a professional sculptor. His first notable work was the 45 feet Chambal Monument at the Gandhi Sagar Dam in Madhya Pradesh. This 45 feet high giant masterpiece carved out of single block depicts Mother Chambal with her 2 children, Madhya Pradesh and Rajasthan, symbolizing the brotherhood of the 2 states. Nehru, the Prime Minister, was so impressed with this magnificent work that he asked Ram to do a similar 50 feet high monument in bronze for the Bhakra Dam to commemorate the workers who laid down their lives enduring the making of this extraordinary engineering marvel of modern India. But this work, modeled on the theme of triumph of labor, was left incomplete due to lack of funds. The most well-known among his work is the bust of Mahatma Gandhi that is sculpted, instantly recognized worldwide, and copies of it were presented by the government of India to other countries like France, England, Italy, and Argentina, where they have been put on display on the occasion of Gandhian centenary celebrations. Ramveer Sudar has designed the tallest statue of the world, Statue of Unity. Sardar Vallabhbhai Patel's 522 feet high sculpture in Gujarat is currently under construction. ये उंगली एक टूल है, कुछ कभी कभी लकड़ी का काम ये मेजरमेंट करने के। मेरा नाम लिया जाता है राम सुतार। सुतार का मतलब कारपेंटर। हमारे पिताजी कारपेंट्री, स्मिथी और मकान बनाना
उसी तरह से बैलगाड़ी बनाना, ये सारे काम हमारे पिताजी करते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें सब कुछ इंजीनियरिंग आ जाता है, स्कल्पचर भी आ जाता है, एक आर्टिस्टिक सेंस आ जाता है इस सब्जेक्ट में। तो इसी तरह से यही गुण समझो एक तरह का हेरिडिटरी जिसको कहते हैं, वही हमारे में गुण आ गया। हम भी बचपन में बचपन में पिताजी के साथ कुछ काम करते थे। हमारी खेती थी, खेती का भी हम काम करते थे। तो इस तरह से मैं बचपन में हार्ड वर्क करना ये हमें आदत हो गई थी। अच्छा, ये हमारे अंदर गुण होने से एक दफ़े क्या हुआ, एक आश्चर्यजनक बात ये है, एक दफ़े हमारे घर में मतलब उपलिया बहुत होती थी, उपलिया होती है गोबर के, उसमें बिच्छू बहुत पनपते हैं। तो बाई चांस मुझे बिच्छू ने काट लिया कि मैंने उसको तो मार दिया। अच्छा, मारने के बाद जो पढ़ा देखा, मुझे तो मूर्ति नज़र आ गई, और वही एक उसी टाइम 501 एक साबुन था, उसका रंग और बिच्छू का रंग बिल्कुल एक जैसा। तो मैंने साबुन के ऊपर ही बिच्छू जैसा वो कार्विंग कर दिया, बिच्छू बना दिया। हम स्कूल में जाते थे उस टाइम, स्कूल में टीचर ब्राह्मण होते थे। हमारा ड्राइंग वगैरह देख के उन्होंने कह दिया कि एक गणेश बनाओ। मैंने कभी गणेश बनाया नहीं था, मगर पता नहीं मराठी दूसरी में, मतलब उस टाइम शायद 7-8 साल का होगा मैं। तो उन्होंने गणेश कहा, मैंने गणेश बनाया इतना बड़ा, अभी भी याद है मुझे। और मिट्टी का बना के उसको कौड़ी से घिस के पॉलिश भी लाता था। मतलब इस तरह से हमारे के अंदर एक गुण, ये हेरिडिटरी कैसा पनपता है ये है। और ऐसा है कि जब अपने के अंदर जो गुण होता है और दूसरे लोग देखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये जैसे कोई अच्छा पौधा हो, खाद पानी देते, ऐसे कुछ लोग लाइफ में मिल जाते। इसी तरह से मुझे भी मराठी स्कूल में या अंग्रेजी स्कूल में ऐसे ही मुझे खाद पानी देने वाले टीचर मिले। मराठी स्कूल में एक मधुसूदन कुलकर्णी था, ब्राह्मण, वो भी मुझे मतलब बहुत मदद किया। हम उनकी सेवा करते थे, स्कूल में ही रहते थे वो, उनके धोते धो देना, कोई बर्तन मान देना। हम बचपन से सेवा करने की ये आदत है। अंग्रेजी स्कूल में जब दाखिल हुए तब बाई चांस है किसी ने कहा, तब मतलब ये एलिमेंट्री ड्राइंग, इंटरमीडिएट ड्राइंग शुरुआत हुई स्कूल में, टीचर इंग्लिश स्कूल में। तो मुझे किसी ने कहा कि एक टीचर है श्री राम कुशल जोशी करके, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे सिखाते हैं। तो मेरे ध्यान में आया कि उनसे जाके मिले और अच्छा रहेगा। तो हम उनके जाके मिले। वो एक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइंग टीचर थे। वहाँ जाके मैं मिला, मेरी इच्छा जाहिर की, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। बोले ठीक है, आते जाओ। इस तरह से मैं वहाँ जाता था, वो कुछ मेरे से काम करवाते थे, मैं भी उनका काम देखता था। तो इस तरह से वो श्री राम जोशी का हमारा बड़ा एक अच्छा रिलेशन रहा। रिलेशन इतना अच्छा, वो मुझे कभी पराया माने नहीं, बिल्कुल जैसे उनके ही फैमिली में है, और इस तरह से वो मदद करते थे। इसी तरह से मतलब कि मुझे मिले। अच्छा, जब आफ्टर मैट्रिकुलेशन होने के बाद उन्होंने कहा कि आप अभी कॉलेज ऑफ आर्ट में जाइए बॉम्बे। तो ठीक है, उन्होंने क्या किया, खुद के अपने रिश्तेदार के यहाँ मेरे रहने का इंतज़ाम कर दिया। इतना ही नहीं, जाने के टाइम मुझे ड्रेसेस भी बना दिए। अच्छा, हर महीने मुझे 4 साल तक हर महीने 25 रुपये भेजते रहे। मतलब कोई टीचर के अंदर गुण हो कि कोई स्टूडेंट को इस तरह से मदद करना एक बड़ी बात है। हमारे भाग में ऐसे टीचर मिले, इसके वजह से मैं आज यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, वही उनके आशीर्वाद और उनके मतलब इंस्पिरेशन में पहुँचा हूँ बचपन में। अच्छा, उसके बाद 48 में वही गुरुजी ने मुझे गांधी जी का मूर्ति बनाने के लिए कहा 1948 में, और वो मन बनाया। करीब 4 फुट का है, आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं, यहाँ लाया उसकी कॉपी मैंने। तो उन्होंने उसके बारे में
उसके लिए 100 रुपये दिए। अच्छा, दूसरी बात, मैं जहाँ 5th पढ़ा, हमारे गांव में तो 4th था, पड़ोस के गांव में 5th, तो 5th में पढ़े तो वो जहाँ पढ़ा मैंने, वहाँ उनके लिए भी एक मूर्ति मैंने कॉपी दे दी। तो उन्होंने मुझे 300 रुपये दिए। वही 300 रुपये और जोशी गुरुजी की मदद लेके मैं बॉम्बे पहुँचा। बॉम्बे पहुँचने के बाद सीधा मैं स्कूल ऑफ आर्ट गए और उनको कहा कि भाई मुझे ये मूर्ति कला सीखनी है। वो ठीक है, आ जाओ। तो मुझे ले लिया। उस टाइम इतनी सीधी मतलब स्कूल में एंट्री मिल जाती थी। कोई मतलब क्या करते थे, ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ, कुछ भी ना, डायरेक्ट मुझे ले लिया। और जब मैं काम करना शुरू किया तो टीचर ने कहा, अरे आपको तो बहुत कुछ आता है, तो डायरेक्ट मुझे 2nd ईयर में ले लिया। इसी तरह से हर साल में मेरी जो एक कला और काम करने का ढंग टीचर लोग को बहुत पसंद आते थे। और चारों साल मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया केजी स्कूल ऑफ आर्ट में। 5 साल का कोर्स 4 साल में हो गए और मुझे इसके बारे में मेयो मेडल मिला। इस तरह से कॉलेज ऑफ आर्ट का मतलब ये हुआ। इसी टाइम में कुछ स्कल्पचर किया। एक करमरकर करके आर्टिस्ट है, वो उनके यहाँ भी कुछ पत्थर का काम चलता था, तो बाई चांस उन्होंने मुझे एक पत्थर का काम करने के लिए कहा। उसके बाद फिर एक मैसेज मिला मुझे कि एलोरा केव्स में एक पोस्ट है आर्टिस्ट का, तो आप क्यों नहीं वहाँ अप्लाई करते। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में मुझे सर्विस मिल गई। 4 साल मैं एलोरा केव्स में रहा और वहाँ के जितने स्कल्पचर टूटे फूटे थे, क्रैक्स आए हुए थे, ऐसे ही रिस्टोर किया मैंने। इस तरह से 4 साल वहाँ रहा एलोरा केव्स में। उसी दौरान किसी ने कहा कि भाई दिल्ली में इस तरह से पोस्ट है, वहाँ क्यों नहीं करते। तो मतलब हम चाहते थे कि प्रोग्रेस हो हमारे। काफ़ी काम एलोरा केव्स में हो गया था, तो आगे और कुछ अच्छा पर काम मिले, तो इस तरह यहाँ अप्लाई किया। तो यूपीएससी के थ्रू हमारा सिलेक्शन हुआ। ये दिल्ली ये DAVP करके डिपार्टमेंट है, वहाँ केदार नायर करके एक डायरेक्टर भी थे, तो वहाँ मैं ज्वाइन कर लिया। तो ऑफिस में काम करते करते उसी टाइम एग्रीकल्चर फेयर हुआ था। एग्रीकल्चर नाम सुनते ही मेरे दिमाग में क्या कि एक एग्रीकल्चर फार्मर का एक छोटा स्टैचू मैंने बनाया। सब लोग देखते हैरान हो जा रहे, आप तो इस तरह से काम करते हैं। तो किसी ने कहा अरे ऐसा तो फिर एग्रीकल्चर फेयर हो रहा है, वह कुछ ना कुछ काम निकलेगा। तो मैंने वही मॉडल ले जाके फेयर चला गया। वहाँ उनको अभी याद नहीं आ रहा कार का, वहाँ बताया तो उसको बहुत खुश हुए। वो ठीक है, हमें 2 स्टैचू बनाइए मेन गेट के लिए, 13-13 फीट के कंक्रीट के स्टैचू। पहले तो दो डिज़ाइन बनाए उन्हें, शायद वो डिज़ाइन के आप फोटोग्राफ भी ले सकते। तो उसके मुताबिक मुझे कुछ 15,000 का काम 2 स्टैचू बनाने का मिला। 13-13 फुट के कंक्रीट के स्टैचू बनाए। इस तरह से वो बनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक उस टाइम जोगलेकर करके आर्किटेक्ट थे, चीफ सेक्रेटरी के। उनके दिमाग में या तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पार्लियामेंट में नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक इसमें जो ब्रिटिश कोट ऑफ आर्म है लगे हुए लाल पत्थर में, उसकी जगह हमारा अशोक स्तंभ लगना चाहिए। उनकी ये कल्पना थी, वो दीवार पे जो लगे हुए करीब करीब 8 बाय 8 फीट का एक बड़ा एम्ब्लेम, वो निकाल के उसके अंदर अशोक स्तंभ लगाना। वैसा देखा जाए 5 फीट का स्कल्पचर अशोक स्तंभ, और वो बड़ा इसका वो बड़ी दीवार बिल्डिंग देखो कितनी बढ़िया है। वो तोड़ना, वो लगाना, निकालना, उसकी जगह ये 5 फीट का लगाना, मुझे तो वैसा अच्छा नहीं लगा। तो उनको कोशिश की बताने की, नहीं कुछ भी हो आप इसको निकाल के आप अशोक स्तंभ लगा दीजिए। तो मैंने फिर मुझे ऑर्डर मिलने के बाद 3000 में एक 5 फीट का स्कल्पचर लाल पत्थर में 3000। खैर मैं पैसे की कभी फिक्र नहीं करता, मुझे जो देंगे तो वो मैं खुश था। मेरे लिए 3000 भी बहुत था।
मैं आगरा जाके लाल पत्थर ले आया, अशोक स्तंभ बनाया, 2 बनाए। तो फिर बना तो दिया, कहते भाई हमने कहा कि भी ये बन गया है, अभी क्या? नहीं, ये तो आपको बहुत काम करना है, वो जो एम्ब्लेम में वो निकालना और ये वहाँ लगाना, फिर जो जगह खाली जगह वो भरना, ये सारा काम आपको ये करना है। क्योंकि ये 3000 में और इतना बड़ा काम कैसा कर सकता हम? ये इतना बड़ा एम्ब्लेम निकालना, वो 5 फीट का लगाना, ये ठीक नहीं है, ये आइडिया ठीक नहीं। वो कहते हैं हु आर यू सजेस्ट लाइक दिस। मगर आखिर में उनको समझ में आ गया, नेहरू जी का जहाँ ऑफिस है उसके सामने ही एरिया में वो अशोक स्तंभ लगा था। नेहरू जी देखते थे, पूछते थे ये क्या हो रहा है, इस तरह से फिर जल्दी से जल्दी फिर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके मैंने जो कुछ किया, बाकी बाद में कुछ उन्होंने भी किया, इस तरह से वो काम पूरा हो। अभी काम तो जो एक्सटेंड होना था, ज़्यादा तो लग रहे थे, वो ख़त्म हो गया। फिर वो जोगड़ेकर ने कहा कि आप ऐसा करो, हमारे भोपाल में एक आर्किटेक्ट करण गाँव करके आर्किटेक्ट है, वहाँ ये टागोर भवन या इस तरह से बन रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ काम निकलेगा, वहाँ चले जाओ। तो वहाँ चले गए उनका लेटर लेके। शुरू में तो उनको एक लगा कि ये क्या कर सकेगा काम, मगर जब मैंने एल्बम बताया उसमें सारा काम देखे तो बहुत खुश हुए। फिर ऑन द स्पॉट जाके देखा, तरह तरह के, फिर ये भी इधर काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत काम निकले। फिर वापस ऑफिस में आ गए। ऑफिस में आने के बाद एक लेबर मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, उनका फ़ोन आया कि भाई हमें एक देवी की मूर्ति बनानी है, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा आप बहुत भाग्यवान हैं, दिल्ली से ऐसे ऐसे एक स्कल्पटर आए हैं, आप ज़रा उनका काम देखिए। तो वो आए, तो मेरे एल्बम में गंगा यमुना के मूर्ति का फोटोग्राफ था। उनको बारे में बहुत ठीक है, हमें एक देवी की मूर्ति बना दीजिए। ठीक है, तो आप मैं नमूना करके बताइए पहले। फिर वो कहती हमारे घर रहिए, बिहार रहिए और फिर बना के बताए। फिर वही लेबर मिनिस्टर के यहाँ रह के वहाँ मैंने बातचीत करते, शाम को बातचीत करने लगे वो कि हमने जो ये चंबल डैम का प्रोजेक्ट किया, वो जो एक मेन चीफ थे चंबल डैम के, और चंबल डैम के लिए देवी की मूर्ति चाहते थे वो। तो वो कहते कि उन्होंने इतिहास शुरू किया कि हमने चंबल डैम का जो स्टार्ट किया, तो मध्य प्रदेश में ये डैम के लिए प्रॉपर फाउंडेशन नहीं मिला, तो उसके लिए फिर राजस्थान में प्रॉपर फाउंडेशन मिला। राजस्थान के लोग अलाउ नहीं करते थे, तो कुछ देर के लिए काफ़ी झगड़ा चलता रहा। फिर आखिर ये तय हुआ कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के लिए कॉमन प्रोजेक्ट है, इसमें झगड़े का कोई सवाल नहीं। ये आइडिया सुन के ही मेरे दिमाग में आया, चंबल नदी जो है ये माता है, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दोनों भाई भाई है। ऐसे ही मैंने कल्पना की, नदी के साथ चंबल देवी के साथ 2 बच्चे खड़े हैं, ऐसे ही मैंने मूर्ति बनाई, एक छोटा डिज़ाइन बना 5 फीट का। उनको बहुत पसंद आया। उसके बाद मैंने कहा कि अभी ये कहाँ लगाना है और कितनी बड़ी बनानी है, तो ये हम देख लेंगे। बचपन से मुझे बड़े बड़े मूर्ति बनाने का बड़ा इच्छा थी, तो ये ऐसा मौका था हमारे लिए। तो वहाँ के साइट बहुत बढ़िया थी, कम से कम 30-40 फीट की मूर्ति वहाँ बननी चाहिए। मुझे उनको बताया। उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपये है, इसमें जो कुछ करना करो। बोले ठीक है। तो डैम में काम चल रहा है, तो कंक्रीट मुझे दीजिए जितना चाहे, कुछ लेबर दीजिए, इस तरह से मुझे लेबर मिल जाए तो बस। इसी तरह से मैंने ये वहाँ चद्दर वगैरह पड़ी थी लोहे की, तो चद्दर लगा लगा के अप्रॉक्सीमेट पहाड़ खड़ा कर दिया। एक पत्थर बनाया मैंने, और वो पत्थर मैंने छीनी हथौड़ी से कार्विंग किया है। आप उसका फ़ोटो देख सकते हैं, ये मूर्ति कैसी बनी है, कैसा बिल्कुल स्टोन जैसा। तो ये मूर्ति पूरी होने के बाद नेहरू जी ने उद्घाटन किया। नेहरू जी को बहुत पसंद आया, इतनी बड़ी मूर्ति और एक बंधुत्व भावना उसमें।
ये तो बहुत बढ़िया नेहरू जी का इम्प्रेशन आज चला। और जब वो भाखड़ा डैम के उद्घाटन करने गए तब पंडित जी ने कहा जैसे चंबल डैम पे मॉन्यूमेंट बना है वैसे ही भाखड़ा डैम पे लेबर का मॉन्यूमेंट बनना चाहिए, ऐसी इच्छा व्यक्त की। और उसी मुताबिक कुछ लोग ना उसमें आए और मुझे ना मॉडल बनाने का बताया, तो हमने मॉडल बनाया। पंडित जी को भी पसंद आया, वह कैरो थे, कैरो जी को भी पसंद आया। तो वो एक 50 फीट की मूर्ति बनाने की थी लेबर के ऊपर, उसका भी फोटोग्राफ है। मगर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फंड्स वगैरह ऐसा कुछ कारण निकल के वो चीज़ रहेगी। पंडित जी जाने के बाद नोबडी टेक केयर, तो आज तक वो जगह ऐसी रहेगी। अभी भी मेरी इच्छा है कोई बाय चांस पंजाब गवर्नमेंट कुछ इसके तरफ ध्यान दे, ये मूर्ति अभी भी मैं बनाने की इच्छा करता हूँ। यहाँ 50 फीट का बड़ा मॉन्यूमेंट लेबर के ऊपर बना सकता हूँ। इस तरह से ऐसे करते करते इसी दौरान फिर न इंडिया गेट के लिए न गांधी जी की मूर्ति की शुरुआत हुई, या बनना चाहिए, तरह तरह के विचार थे। तो गांधी जी कैसा हो क्या हो। मैं जब यहाँ दिल्ली आया तब आप इंडिया गेट पे जो कैनोपी है वहाँ पंचम जॉर्ज की मार्बल की मूर्ति थी। तो लोगों को पसंद नहीं था, वो तोड़ना शुरू किया। पहले तो लोगों ने नाक तोड़ दिया, फिर बाद में टार पोत दिया, आखिर में वो मूर्ति निकाल दी। तब से मेरे दिमाग में उस छतरी के अंदर, कैनोपी के अंदर कैसी मूर्ति होनी चाहिए, मैं गांधी जी का एक डिज़ाइन बनाया। वो आपको भी देख सकते हैं, बहुत अप्रोप्रिएट ये कैनोपी के लिए। जैसे वो मार्बल की मूर्ति थी वैसी ये भी मूर्ति वहाँ लगी। तो इसका भी आप फोटोग्राफ लेके देख सकते हैं। अभी भी मेरी इच्छा है वो कैनोपी में महात्मा गांधी की मूर्ति लगे, उसके लिए डिज़ाइन बना है। आई एम रेडी फॉर वर्क। कभी देखते हैं, मोदी साहब को मिलकर बातचीत करेंगे और आशा है हमारी इच्छा पूरी हो सकती है। इस तरह से करते करते मेरे पास बहुत सारे स्टैचूज़ गए। महात्मा गांधी का स्टैचू डिज़ाइन हमारे ही पास हुआ। वो डिज़ाइन जो बनाया इतना 16.5 फीट सिटिंग फिगर बनाई जो कैनोपी में सूट हो, मतलब वहाँ जो जगह थी 10 बाय 10 के उसी हिसाब से। मगर क्या हुआ कि कुछ लोग कहने कि गांधी जी ये जो अंग्रेजी के बनी हुई छतरी में लगाना ठीक नहीं, कुछ विरोध करने लगे। आखिर में बहुत दिन तक कुछ महीने हो गए तो कोई ये बात तय नहीं हुई। फिर शिवराज पाटिल करके स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि ये लोग कैनोपी में नहीं लगाना चाहते तो हम पार्लियामेंट में लगा लेंगे। और ये तय हुआ और वो सिटिंग फिगर है पार्लियामेंट में अभी जो लगी है वही चीज़ है। तो अभी तक वो छतरी जो कैनोपी खाली है उसके लिए मैंने बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन बनाया। शायद हमारा लक हो तो हमारा वहाँ गांधी जी का वो डिज़ाइन ज़रूर वहाँ लगेगा। आपके सर कार्यकाल में आपने पूरे जीवन में जो आपकी जो पसंदीदा जो आपने मूर्तियाँ बनाई जी, वो कौन सी थी, उसके बारे में थोड़ा सा वही पसंदीदा था। महात्मा गांधी के बारे तो हमारे बारे में प्यार, उनके जो विचार, तो ये पसंद होने से उनके व्यवहार, बातचीत करना, लाइफ में कैसा व्यवहार करना, ये हमारे अंदर हम ऐसे कोशिश करते रहे। हेल्पफुल रहना, सेवा करना, ऐसा सच बोलना, ये सारी चीज़ें मतलब गांधी जी के विचार, तो हम मतलब उसी तरह से चले आए। और आज तक हमारी लाइफ ऐसी रही, सिंपल रही, ज़्यादा दिखावट की वगैरह ऐसी कुछ नहीं रही। और यही कारण है मेरे अंदर जो काम किया बहुत सीधा साधा, बहुत अच्छा जी लगा के, बहुत सिंसियरली हम काम करते रहे। और यही कारण है कि हमारे जो काम आजकल मिले हैं ये हमारी सिंसियरिटी, अच्छा काम, इसके वजह ही हमें इतने काम मिले। गांधी जी के बाद फिर सिर्फ पार्लियामेंट में गांधी जी क्यों, नेहरू क्यों नहीं, नेहरू के बाद इंदिरा जी क्यों नहीं, फिर मौलाना आज़ाद क्यों, इस तरह से करते करते आज तक पार्लियामेंट में 16 मूर्ति लगाई है, काफ़ी बड़ी बड़ी। आपको सबसे चुनौतीपूर्ण जो आपका काम रहा जी, वो कौन सा रहा? तो अभी तो चुनौतीपूर्ण यही रहा जब हमने पार्लियामेंट के लिए सरदार पटेल का स्टैचू बनाया, वही एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनाया, तो यही मतलब मूर्ति बहुत लोगों को पसंद आई।
मोदी ने एक ऐसा शख्स है कोई इंटरनेशनल, तो उनके भाई यहाँ जो मूर्तियाँ बनी है, जो भी जिसने बनाई है, वो आप देख के सबसे बढ़िया मूर्ति किसकी लगी, कौन अच्छा रहेगा बड़ी सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि सब मैंने देखा, सबसे बढ़िया काम जो है राम सुतार का है। इसकी वजह से मोदी ने मुझे ये सरदार पटेल का काम बनाने का दिया है, और ये बहुत खुशी की बात है। दुनिया के सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का है, 522 फीट। अभी वो काम चल रहा है, तो इस तरह से अभी और 1-2 साल में ये पूरी होने की आशा है। इस मूर्ति के बारे में सिर्फ थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है, ये एक अपने आप में ये 8वां अजूबा होगा। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप। खैर अभी ये जो सरदार पटेल की मूर्ति जो बन रही है, इसका कारण तो यही है, सरदार ने हमारे हिंदुस्तान में जो तरह तरह के छोटे छोटे राज थे, ये समझौर हो जाते तो झगड़े आपस में करते। तो सरदार ने ये सब लोग को समझा के एक साथ होने का, पूरा हिंदुस्तान एक है, अलग अलग राज नहीं है। तो इस तरह से उनको समझा बुझा के, तो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे राज थे वो सारे एक साथ हो गए और सरकार के अंदर एकजुट काम करने लगे। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। मोदी जी को ये सबसे बहुत बड़ी बात लगी, इम्पोर्टेंट लगी। दुनिया में इस तरह से किसी ने काम नहीं किया, इसकी वजह से इनके दिमाग में आया सबसे बड़ी मूर्ति होना चाहिए, और फॉर्चुनेटली उनकी इच्छा पूरी हो रही है। तो इस तरह से हो रहा है। पटेल जी की मूर्ति के अलावा आपके सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से रहे? अभी सरदार पटेल के बाद उसी तरह से बहुत सालों से बॉम्बे में शिवाजी की मूर्ति बनाने का विचार चल रहा था। वो भी सरदार पटेल की मूर्ति जो हो रही है, इसके साथ ही एक तरह का इनको भी इच्छा हो गई हम भी इसी तरह से बड़ी मूर्ति बनाएं। तो ये भी मूर्ति बनाने का तय हो गया है। हमने डिज़ाइन बनाए हैं, वो भी पास किया है गवर्नमेंट ने, तो वो भी बनाने का काम हमें मिला है। उसका भी शुरुआत मॉडल तो बन गया है, आगे चल के सारा मतलब जो प्रोसेस होता है वो बाकी है, और काम शुरू ये भी 2-2.5 साल में ये भी मूर्ति बनाने का मतलब कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने जो देखा है लखनऊ में और नोएडा में जो आपने इतने मतलब विशालकाय मूर्तियाँ बनाई हैं पार्क, तो उनके बारे में थोड़ा सा। हाँ, एक बार एक चांस रहा, सतीश गुजराल ने लखनऊ में जो अंबेडकर के नाम से एक बिल्डिंग बनी है, और वो सतीश गुजराल ने डिज़ाइन किया है। तो एक दफ़े मायावती के दिमाग में आया कि इसे यहाँ मूर्ति बनानी है। तो सतीश गुजराल को पूछा जाए यहाँ एक मूर्ति बनानी है, किसको कहा जाए, क्या कहा जाए। सतीश गुजराल ने कहा भाई राम सुतार हैं, बहुत अच्छे मूर्तिकार है, उनसे बनाई। तो उन्होंने मायावती ने हमने बुलाया और कहा कि हमें इतने महीने में मूर्ति बनाने अम्बेडकर की। और जैसी वो मूर्ति, जैसे अमेरिका में एक मूर्ति लगी है का नाम, तो उसी तरह से कुछ डिज़ाइन बनाने का सोचा। इस तरह से न्यूयॉर्क में जो लिंकन हॉल है, लिंकन हॉल, अब्राहम लिंकन, तो उसी तरह से जैसा वो बैठे हैं उसी टाइप का बनाने का सोचा। मायावती ने कहा उसी तरह से बनाइए बस। तो कुछ महीने में मूर्ति बनाया, 15 फीट की सिटिंग फिगर है वो बनाई, और वो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति बननी चाहिए। और फिर मैंने कहा कि ऐसे हमारे लिए मूर्ति बनाने के लिए जगह बहुत कम है, हमें कहीं जगह मिलनी चाहिए। वो कहते कि आप मूर्ति बनाइए, मैं आपको जगह दे दूँगा। हमने मूर्ति बनाई, वो खुश हो गई। फिर यहाँ जो नोएडा में ये जो जगह है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, तो उन्होंने कहा ठीक है इनके लिए 2 प्लॉट दे दिया जाए। खैर हमारा नाम आया, बाकी पैसे तो भरना ही है, सिर्फ अलाउ किया कि इनको यहाँ जगह मिल जाए। तो हमने कुछ पैसा तो दिया है, मुफ्त में नहीं मिला, सिर्फ हमारे ये एरिया में हमारी जगह मिल गई।
इसी तरह से ये स्टूडियो बना है, यहाँ में काफ़ी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इस तरह से हमारा लाइफ है। अच्छा, ख़ास बात है कि मेरे साथ हमारा लड़का अनिल जो है, जो उनमें भी आर्किटेक्चर सिर्फ नहीं, वो भी स्कल्पचर जैसा काम करता है, और आर्किटेक्चर होने से और एडिशनल उनको नॉलेज है। तो हमारे काम में बड़ा मतलब ये हम साथ साथ काम कर रहे हैं बहुत। आपकी ज़िंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण जो कार्य रहा वो कौन सा रहा? चुनौतीपूर्ण तो ये तो गांधी जी के स्टैचू के बारे में तो है ही। ये दुनिया में, सारी दुनिया में 350 के ऊपर ना गांधी जी के स्टैचू बैठे हुए, स्टैंडिंग है, बस्ट है, इतने सिटीज़ में लगे हैं। ऐसे इतने सिटीज़ में कोई स्टैचू नहीं लगे हैं। तो इसके बारे में आई एम वेरी प्राउड और बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह से भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। हमारा नाम काफ़ी हो गया है, बहुत सारे लोग हमारा ही नाम लेते हैं और हमारे पीछे लगे कि आप बनाइए हमारे लिए। इस तरह से हमारे पास बहुत काम है। जनरली ये जो रियलिस्टिक काम है, मॉन्यूमेंटल वर्क्स है, मॉन्यूमेंटल एक इतिहास का काम, इतिहास में जुड़े हुए ये काम है। हज़ारों साल टिकने वाले इतिहास जो होता है। Being Mr. Ram V. Sutar's son is a very big honor and privilege to be able to work with him since my early age. I can tell you that maybe in 1965 we have a picture where I am standing on a ladder and watching him do the sculpture of a Govind Vallabh Pant statue. From the beginning I was involved in sculpture because I have seen him, and then whenever I was in the studio I would always do small sculptures after seeing what he does, what the techniques he uses and the style which he used. So I was involved with sculpture since the beginning of my career, and when I passed my high school I wanted to join the School of Art or College of Art here in Delhi, but my father said that since you already know a lot of art and you can make sculptures, it is better that you become an architect, and so that both these different fields can help you a lot in future. And so it also was very beneficial, because while in School of Architecture, School of Planning Architecture in New Delhi, I was able to do a lot of art and do a lot of painting, sculptures while I was doing architecture. And also, like when I went abroad to America to do my master's in architecture and urban design, I did a lot of sculptures there, a lot of paintings, a lot of ceramics, so many different things, and a lot of people have my paintings and sculptures in their collection in US. In '94 I had to come back because my father refused to come to US because he thought that he was more settled here and he would not be able to really survive in the new world of US. So we decided to come back, and my family came back to Delhi, and it was a journey where father and son started working together.
and it has been a wonderful experience because I was able to amalgamate architecture and sculpture together. Being an architect, you are always taught about engineering and how things can be done faster, what are the best techniques, the latest techniques what one can use. So after joining my father, I was able to introduce all these new elements which probably other sculptors could not, because looking at the time frame required for each sculpture and how it could be expedited, I was able to do that using latest techniques of computer programming and CNC machines, and able to engineer most of the sculptures, which are very tall sculptures like 18 feet, 20 feet and 40 feet. So that has helped me a lot, and that's how we work together. And even for this new Sardar Patel statue which is coming up in Gujarat, my ideas about how the structure should be, how it should be made, have been used in the total techniques. Even in this Shivaji statue which we are doing in Mumbai, again same techniques are going to be very useful. So it helps me a lot to be able to work with him, implement his artistic ideas, use my scientific and engineering point of view and create a sculpture together, which will be very useful for future also. Do you have any challenging project with him? Well, most of the projects which we are doing right now are challenges only, because right now we are doing a 522 feet high Sardar Patel statue, which is the world's biggest statue in bronze. And whatever techniques we have discussed with the contractors, L&T, and people who are doing the casting, we are implying the same techniques so that the project can be successful. Similarly, now that Shivaji statue which we are doing is also very challenging, because in this the two front legs of the horse are all cantilevered, and all the weight is going to be transferred there. So it's a big challenge to be able to do this big statue where the horse is totally cantilevered and in a flying position, you can say. Any of the project when you felt like the most memorable project in your life? Well, because all the projects are very challenging. I think up till now, I think Sardar Patel statue is most challenging, but now probably the Shivaji statue is going to be more challenging, and it will be a challenge to see how engineering and sculpture and everything comes together. Any of the project which you have leaded and Ramveer Sutar ji supported you as an assistant? No, it's not like that. I will always be the assistant to him, because the main artwork has to be done as per his directions and whatever techniques he's using. But of course, he always takes my advice also to see how things can be bettered, or some details if they are missing, then I try to correct them so that things can be done in a right way. And now there's an exhibition coming up